بہت کچھ سن رکھا ہوگا تم نے سردار عبدالرحمان بلوچ یا رحمان ڈکیت کے بارے میں، لیکن وہ سب کچھ نہیں دیکھا ہوگا جو اس ڈاکیومنٹری میں تمہیں دکھاؤں گا۔ تم نے وہ سب کچھ نہیں سنا ہوگا جو اس ڈاکیومنٹری میں تمہیں سنواؤں گا۔ جو ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی ماریں گے۔ میں عبدالرحمان بلوچ کا چھوٹے بھائی کا بیٹا ہوں، فرزند ہوں۔ فتح خان میرا نام ہے۔ سردار عبدالرحمان ہمارے اس کے ساتھ دو رشتے ہیں، میرا بھائی بھی لگتے ہیں، میرے ماموں بھی لگتے ہیں۔ میرا نام لیاقت بلوچ ہے، لیاری کے علاقہ کلاکوٹ میں پیدا ہوا، جو آج کل مشہور و معروف افشانی گلی کہلاتا ہے۔ رحمان سے میرا بچپن سے تعلق ہے۔ میرا نام چودھری بختاور ہے جی، میں نے پولیس میں کوئی 40 سال سروس کی اس زمانے میں۔ لیاری میں خاص طور پہ مختلف ادوار میں مختلف رینک پہ کئی سالوں تک ڈیوٹی کرتا رہا۔ میرا نام سعید سروادی ہے، میں کراچی پریس کلب کا فارمر پریزیڈنٹ ہوں۔ رحمان ڈکیت اور رحمان ڈکیت کے ساتھ 3 اور لوگ تھے تو دوران علاج رستے میں ایکسپائر ہو گیا۔ دیکھو آپ جس جگہ پہ بیٹھے ہو، یہ سردار عبدالرحمان بلوچ کا بیٹیک تھا۔ یہ جو آپ لون دیکھ رہے ہو سردار عبدالرحمان بلوچ نے بنایا ہے۔ وہ یہاں بیٹھتا تھا، وہ اپنے میٹنگ کرتا تھا، علاقے کے لوگوں کے مسائل سنتا تھا۔ تو یہاں بلوچستان کے سردار وغیرہ یہاں پر آتے تھے تو اس کو لقب دیا گیا تھا سردار عبدالرحمان بلوچ۔ عبدالرحمان بلوچ کا والد، اس کے چچا، کس نے اس کو پالا، کیسے وہ جرائم کی دنیا میں داخل ہوا، یہ سب اسٹوڈیو میں بیٹھ کر تسلی سے بتاتا ہوں۔ لیاری کی افشانی گلی، جہاں عبدالرحمان بلوچ المعروف رحمان ڈکیت نے اپنے آبائی گھر داد محمد بلوچ ہاؤس میں آنکھ کھولی۔ یہ گھر آج بھی موجود ہے، اور اس گھر کا وہ کمرہ جہاں رحمان نے زندگی گزاری اور وہ بستر جو اس کے زیر استعمال رہا اسی طرح موجود ہے جیسے عبدالرحمان بلوچ نے اسے اپنے لیے سیٹ کر رکھا تھا۔ رحمان بلوچ کی بیٹھک یا اوطاق جہاں لوگ اس سے ملنے آیا کرتے تھے یا پھر جہاں وہ تنہائی میں اپنا وقت گزارا کرتا تھا، آج بھی موجود ہے۔ یہاں پہلے گاؤں تکیا رکھے ہوئے تھے، قالین بچھا ہوا تھا، تو یہاں پردے لگے ہوتے تھے، لوگ آتے جاتے تھے، یہاں پر اس کے سیاسی سماجی کام ہوتے تھے۔ آخری ملاقات ہماری یہاں ہوئی اس جگہ پہ، تو یہاں لیپ ٹاپ لے کے بیٹھا ہوا تھا، تو میں اس ٹائم چھوٹا تھا، تو میں آیا یہاں پر بیٹھا ہوا تھا، تو اس کے بعد آخری ملاقات جب وہ اسی دن چلا گیا، اس کے بعد واپس نہیں آیا۔ وائٹ ہاؤس کا نام تو سن رکھا ہوگا آپ نے، لیکن یہ وہ وائٹ ہاؤس نہیں جو واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ ہے۔ میں بات کر رہا ہوں پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے شہر ہب میں واقع وائٹ ہاؤس کی، جہاں جانے کا حوصلہ ہر شخص میں نہیں تھا، اور جہاں جانے سے لوگوں کو خوف آتا ہو وہاں چودھری اسلم ضرور جایا کرتا تھا۔ بہت سارے دہشت گرد یہاں سے پکڑے گئے ہیں، کچھ زخمی ہوئے ہیں۔ اور پھر چودھری اسلم نے اپنے شہید دوست بہادر علی کے بیٹے عرفان بہادر اور اپنے افسر عمر شاہد کی نگرانی میں وائٹ ہاؤس پر حلہ بول دیا، لیکن وہاں وہ کچھ ہوا جو ان افسروں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وائٹ ہاؤس اس کا گھر تھا جو سفید کلر میں اس نے بنایا تھا، ایک بنگلہ ٹائپ کا بنایا تھا، بہت تقریباً 120 گز کے اس پہ تھا، نہیں بلکہ 200 کے اس پہ آس پاس تھا۔ ایک بنگلہ بنایا ہوا تھا، بس وہ لوگوں نے مطلب اس علاقے کے اندر ایک عجیب سا چیز تھا نا، تو اس کو وائٹ ہاؤس کا نام دیا گیا ہے۔ تو وہاں مثلا یہ پھر ہوا تھا پولیس مقابلہ ان کے ساتھ۔ اطلاع ملی کہ رحمان ڈکیت اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہب میں کسی جگہ پہ موجود ہے۔ آگے گاڑی میں موجود تھا اور چودھری صاحب تھے، پھر عمر شاہد صاحب تھے اور ایک میجر صاحب تھے۔ 7-8 پوائنٹ سے جہاں پہ پکٹس لگائی ہوئی تھی انہوں نے، ان تمام پکٹس سے وہ فائرنگ شروع ہو گئی، اور فائرنگ کے نتیجے میں جیسے ہی ہم پہنچے تھے تو جس گاڑی میں اور ہم باقی سارے تھے، جس میں چودھری صاحب بھی تھے اور میجر صاحب بھی تھے،
और पीछे एक हमारे साथ एक ट्रक था, उस ट्रक के अंदर उस ट्रक का ड्राइवर था और एक क्लीनर था। तो वो दोनों, एक जख्मी हो गया और बाद में दूसरा जो क्लीनर था वो भी उसमें जाँ बहक हो गया। 2005 में होने वाला ये एक खूनी ऑपरेशन था। हब में इस ऑपरेशन के दौरान रहमान डकैत के हाथों चौधरी असलम, इरफान बहादुर और इनके अफसर उमर शाहिद गोलियां लगने से जख्मी हो गए थे। लियारी में रहमान के इलाके का SHO अरशद भट्ट और रहमान के 2 साथी इस ऑपरेशन में मारे गए थे। 25 अफराद जख्मी थे। पुलिस ने कुछ मुश्तबा अफराद को हिरासत में लेकर ट्रक भरकर असलहा रहमान के इस व्हाइट हाउस से बरामद करने का दावा किया था। इस ऑपरेशन के बाद पुलिस ने रहमान का व्हाइट हाउस मस्मार कर दिया। वैसे पुलिस के साथ हब में ना ये मुकाबला होता, ना ही व्हाइट हाउस मिसमार, अगर अब्दुल रहमान बलोच या रहमान डकैत जेल से आसिफ अली जरदारी के भेजे गए पैगामात को संजीदा लेता। ये क्या पैगामात थे बताता हूँ, लेकिन पहले अब्दुल रहमान बलोच की जिंदगी पर असरअंदाज होने वाली अहम तरीन शख्सियात और मुख्तलिफ किरदारों से तो मुलाकात कीजिए। ये हैं दाद मोहम्मद बलोच अल मारूफ दादल, अब्दुल रहमान के वालिद। जीप में बैठे ये हैं शेर मोहम्मद उर्फ शेरुख, अब्दुल रहमान के चचा, और ये जीप दादल और शेरुख की लियारी में पहचान, और इनका नाम है फतेह। ये अब्दुल रहमान के चचा शेर मोहम्मद उर्फ शेरुख के बेटे हैं। अब्दुल रहमान के वालिद के इंतकाल के बाद शेर मोहम्मद उर्फ शेरुख और उनके बेटे फतेह ने ही अब्दुल रहमान बलोच की तरबियत की। ये है हाजी लालू, अब्दुल रहमान बलोच का गॉड फादर। अब्दुल रहमान बलोच को रहमान डकैत बनाने में सबसे बड़ा किरदार इसी का है। ये लियारी में नदी के दूसरी तरफ शेरशाह, पाक कॉलोनी और जहानाबाद के इलाकों का क्राइम मास्टर है। इसके बेटे अरशद पप्पू और यासिर अरफात हैं, जो बचपन से अब्दुल रहमान बलोच के दोस्त हैं। इकबाल उर्फ बाबू डकैत, अब्दुल रहमान बलोच जब बच्चा था तब लियारी का गुंडा इकबाल उर्फ बाबू डकैत था, जिसने पिक पॉकेट्स यानी जेब कतरों का ग्रुप बना रखा था। अब्दुल रहमान बलोच ने जिस माहौल में आंख खोली, उसमें मनशियात फरोश और पुलिस एक ही सिक्के के 2 रुख थे। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि उस जमाने में मनशियात टेप रिकॉर्डर के जरिए रिकॉर्डिंग लगाकर बेची जाती थी और पुलिस अपना हिस्सा पूरी ईमानदारी से वसूल करती थी। अफशानी गली में आनल नामी मनशियात फरोश था, जिसके अड्डे पे रिकॉर्डिंग लगी होती थी कि आनल की चर्स, तो वो मशहूर थी, लोग वहाँ से ज़्यादा खरीदो फरोख्त करते थे। ऐसे चोज मोकल दिया करते थे, पुलिस भत्ता लेती थी जब जाके शुरू होता था काम ये, और बड़ी ईमानदारी से वो भत्ता दे के जाते थे। अब इस माहौल में जहाँ जराइम पेशा अफराद को कानून खुद तहफ़्फ़ुज़ फराहम करता हो, इस माहौल में पैसा बनाने और ताकत हासिल करने का जराइम के सिवा दूसरा कौन सा आसान रास्ता हो सकता था। सो रहमान बलोच के वालिद दादल और उसके चचा शेरुख ने भी इस दलदल में छलांग लगा दी, लेकिन रास्ता मुख्तलिफ चुना। इन्होंने अहम सियासी शख्सियात को अपनी ताकत बनाया, यानी जुर्म और सियासत के गठजोड़ में महारत अब्दुल रहमान बलोच को विरसे में मिली थी। सरदार अब्दुल रहमान का जो वालिद सरदार आजिज अहमद बलोच थे, उनका ताल्लुक महमूद हारून फैमिली से था। सियासी तौर पर वो जो जाने जाते थे, उस फैमिली के साथ उनकी बहुत अच्छा जो है ना वास्ता और राब्ता था। उसके बाद सरदार आजिज अहमद बलोच पीपल्स पार्टी में आए। जाम सादिक अली जब मुल्क छोड़ रहे थे, उसमें भी सरदार आजिज अहमद बलोच ने उसको साथ दिया। हाँ, शेरू दादल का किरदार तो बहुत ही वो था ना, मतलब खुली जीप लेके जाना, खुले गरेबान, खुले निपिया रोड पे ले जाना, वहाँ बदमाशी करना, कोई आदमी उनके साथ तू मैं नहीं कर सकता था। जिसने किया उसको किसी को गाड़ी के साथ बांध के घसीटा, हर वक्त छुरी पास रखनी, खंजर पास रखना इन्होंने। दादल और शेरुख के भाई यानी अब्दुल रहमान के चचा ताज मोहम्मद को इकबाल उर्फ बाबू डकैत ने कत्ल कर दिया। वही बाबू डकैत जो जेब कतरों के नेटवर्क का सरगना है और भेस बदलने का माहिर है। उस जमाने में असले का इस्तेमाल बहुत कम होता था, इनके पास असला इतना ज्यादा नहीं होता था। पत्थरों, लड़ाई झगड़ा, पुलिस से मार कुटाई तक रहते थे।
एक सिर्फ बाबू था जो आगे असले से पुलिस मुकाबला करता था। कि करता क्या था, कभी तो तुर्की टोपी पहन के फिर रहा होता था, हाथ में खोंडी पकड़ी हुई है, कभी शेरवानी पहन ली है, कभी बोरियों का लिबास पहन रहा है, कभी कुछ किया है। तो ये मेरा ख्याल 92 में मैंने खुद रेड किया है इसके घर पे, तो घर से बहुत सारे ये लिबास मिले उस वक्त। दूसरी तरफ अब्दुल रहमान बलोच की फैमिली का करीबी दोस्त हाजी लालू भी जेब कतरों का एक बड़ा नेटवर्क बना चुका है। ताज मोहम्मद के कत्ल के बाद इकबाल उर्फ बाबू डकैत, दादल, शेरुख और इनके दोस्त हाजी लालू के निशाने पर है। बाबू डकैत की और इनकी आपस में दुश्मनी थी। हाजी लालू जो है बेसिकली करता था ये जो ईरानी करते हैं ना पैसे देने में, वे नोट गिनती कर लिए, ये चेंज देना, उस चेंज के अंदर पैसे मारता था और उधर से करते कराते फिर इसने पिक पॉकेट रख लिए और इवन यहाँ तक कि मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा तक भी इसके पिक पॉकेट ज्यादा करते थे। और यहाँ मंशियात में ये सिर्फ क्या करता था कि ये अपना मंशियात फरोश जो खास तौर पे पठानों का माल जो है अपने पास डंप करता था अपने घर में, अपने अड्डे पे या अपनी जगह पे, उनसे किराया वसूल करता था। अब्दुल रहमान बलोच बहुत छोटा था जब इसके वालिद को जेल जाना पड़ा और वहीं उनका इंतकाल हुआ। क्राइम मास्टर हाजी लालू, जो अब्दुल रहमान बलोच के चचा शेर मोहम्मद उर्फ शेरुख को लियारी में अपने हरीफ इकबाल उर्फ बाबू डकैत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था, अब इसने अब्दुल रहमान बलोच पर भी हाथ रख दिया था। अब्दुल रहमान बलोच इस तमाम अरसे में दीन और जुर्म के रस्तों के दरमियान खड़ा था। आपको शायद ये जानकर हैरत हो कि अब्दुल रहमान बलोच तबलीगी इज्तिमात में शिरकत करता था, तबलीगी जमात के साथ सफ़र करता था और नमाज भी पढ़ लिया करता था। कराची इज्तिमा में हम साथ भी गए थे, जब वहाँ बैस कॉलोनी में ये इज्तिमा होता है शाह लतीफ़ में, वहाँ हम साथ भी गए थे। और तकरीबन वहाँ बहुत सारे ऐसे हमारे इलाके के लोग हैं, उनको जो है ना शब जुम्मा अक्सर उस ज़माने में मदनी मस्जिद में हुआ करता था, तो पैसे दे के यार आपको सह रोज़ा लगानी है, आपको चिल्ले पे जाना है, तो इसका अखराजात ये, तो ये पैसे ले लो और जाओ और हमारे लिए दुआएं करना। अक्सर खुद भी आते जाते भी रहते थे और ये हुआ है, सह रोज़े की जमातों में लोगों को भेजे, पैसे दिए कि 3 दिन के ये बरकतें आते तो ये आप अपने साथ ले जाओ, आप चिल्ले में जा रहे हो तो चिल्ले में ये आप ले जाओ अपने साथ में। इस तरह से मतलब उसकी ज़िंदगी गुजरी है। तबलीग में मतलब तबलीग के साथ तो मुंसलिक थे और जुड़े थे। लेकिन फिर एक ऐसा वाक़या पेश आया कि जुर्म की दुनिया और दीन के दोराहे पर खड़ा अब्दुल रहमान बलोच हमेशा के लिए जराइम की दुनिया का बासी हो गया और जुर्म के इस दलदल में इसको धकेलने वाला कोई और नहीं, पाक कॉलोनी का क्राइम मास्टर हाजी लालू था। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, खुदा की कसम खा के कहता हूँ, रहमान सहरोज़े में था, तबलीग में। हमारा एक मामू पते बलोच, उसका रिकॉर्ड है आज तक उसने किसी को चांटा तक नहीं मारा। गरीबों का हमदर्द था, गरीबों से प्यार करने वाला इंसान था। जब उसको सलमान बलोच का बेटा, सलमान बिरौगी कोई बोलता है, कोई क्या बोलता है, उसका बेटा गफूर बिरौगी ने मेरे मामू पर हमला किया, वो इंतकाल कर गए। इंतकाल कर गए तो रहमान उस वक्त सहरोज़े में था, उसको फोन करके बुलाया गया और उसने कब्रिस्तान में रो रो कर कहा कि मैं अपना बदला लूंगा, अपना भाई का बदला लूंगा, किसी हालत में नहीं छोड़ूंगा। लोग सारे परेशान थे कि ये बच्चा रो रहा है, 15 से 16 साल उसको उम्र था, ये बच्चा रो रो के ये कह रही है बच्चा करेगा क्या। और उस बच्चे ने 39वां दिन सलमान बिरौगी और उसके भाई को मारा। हाजी लालू के सपोर्ट से हुआ ये। रहमान के जो चाचाजाद भाई हैं पते, वो किसी जिरगे में जा रहे थे, कहीं एक की प्रॉपर्टी का मसला था, तो वहाँ इनके साथ ये ना सलमान बिरौगी के बच्चों के साथ इनका एक मामला था, तो ये जा रहे थे वहाँ जिरगे के हवाले से, लेकिन रास्ते में उनको किसी ने बताया कि पते आपको मारने के लिए आ रहे हैं। तब वो उन्होंने अपने सेल्फ डिफेंस में इस तरह से फतेह के ऊपर हमला किया, यहाँ अपना डालमिया के मुकाम पर, तो वहाँ फतेह शहीद हुआ। उसके साथ 1-2 और भी इंजर्ड भी हो गए थे, ज़ख्मी हो गए थे। फिर उसके बाद रहमान की कहानी शुरू हो गई।
वहाँ से फिर ये कि हाजी लालू ने उसको कि हम बदला लेंगे इस तरह से, तो ये मसला मामला बोला, ये दुश्मनी में ये सिलसिला चला। लियारी गैंग वॉर का एक बहुत अहम किरदार है रऊफ नाजिम। अभी उसके मुतालिक सिर्फ इतना जान लें कि उसका एक भाई था आरिफ, जो कि लियारी में मुख्तलिफ जराइम पेशा अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप चला रहा था, और अब्दुर्रहमान बलोच इस तमाम अरसे के दौरान आरिफ का दस्ते रास्त बन चुका था। 90 की दिहाई में आरिफ पुलिस एनकाउंटर में मारा जाता है और उसके बाद इसके ग्रुप की कमान अब्दुर्रहमान बलोच के हाथ में आ जाती है। अपने चचाजाद भाई फतेह के कत्ल का बदला लेने के बायस अब्दुर्रहमान बलोच का नाम लियारी और मुख्तलिफ जराइम पेशा ग्रोह में ज़बान ज़दे आम होता है। दूसरी तरफ हाजी लालू और उसके दोनों बेटे भी अब्दुर्रहमान बलोच की सपोर्ट के लिए मौजूद होते हैं। यूं लियारी नदी के दोनों इतराफ यानी पाक कॉलोनी और जहानाबाद और लियारी में अब्दुर्रहमान बलोच एक बेखौफ और निडर शख्सियत के तौर पर पहचाना जाने लगता है। और फिर एक दिन अब्दुर्रहमान बलोच की गोली से उसकी अपनी मां मर जाती है। ये कत्ल बहुत मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में हुआ। ये कत्ल क्यों हुआ? कुछ लोग कहते हैं कि अब्दुर्रहमान बलोच को अपनी वालदा पर उसके मुखालिफ ग्रुप से ताल्लुकात का शुबा था, और कुछ लोग कहते हैं कि ये गोली इत्तफाकिया तौर पे चली थी और इस तरह चली थी कि अब्दुर्रहमान बलोच की वालदा उसको जराइम की दुनिया से बाहर निकालने की कोशिश कर रही थी। माँ बेटे में तकरार हुई और इस तकरार के दौरान अब्दुर्रहमान बलोच के हाथ में मौजूद क्लाशनकोफ का ट्रिगर दब गया। बहरहाल इस वाक़े के हवाले से जितने मुंह उतनी बातें हैं, इसलिए हम इस वाक़े की गहराई में नहीं जाते। ये एक हकीकत है कि उसने अपनी माँ का मर्डर किया, जो कहीं और रिकॉर्ड नहीं आया क्योंकि उसकी कोई रिपोर्ट नहीं हुई। रहमान ने ताकत हासिल करते ही धंधे में पुलिस के किरदार को मुकम्मल तौर पे ख़त्म कर दिया। जी, ये आप 90 तक तो कह दें कि पुलिस की मर्जी से होते थे तमाम कारोबार। फिर ऐसा वक्त आया कि जब ऊपर से सख्ती हुई तो बिल्कुल SHOs ने मोकल देना बंद कर दी पुलिस को। पुलिस ने मोकल देना बंद कर दी। अगर वहाँ बिक भी रही थी तो वो अपनी ज़बरदस्ती बेच रहे थे। पुलिस को कोई पैसा नहीं दिया करते थे, जैसे ये रहमान वाले शुरू हुए हैं। धंधा चलाने की ये नई रिवायत थी। और साथ ही अब्दुर्रहमान बलोच कराची की बलोच आबादियों में MQM के रस्ते की दीवार बनना शुरू हो गया। ये कोई आज का मसला नहीं है लैंड माफिया का और मंशियात फरोशी का। ये एक बहुत देरीना मसला है इस शहर का, और इसके नतीजे में कभी यहाँ पर जो है वो टारगेट किलिंग होती है, कभी सियासी जमातों को आपस में यहाँ पर लड़ाने की कोशिश की जाती है। अगर हम पीपल्स पार्टी छोड़ दें तो हमें आप माफ़ कर दोगे, तो कल हम बात करेंगे अपने लोगों से, हम पार्टी छोड़ देते हैं यार। हम भी अल्ताफ का नारा लगाएं, हम फारूक सत्तार का नारा लगाएं, इतना जुल्म ना करो। MQM का एक मसला ये था कि MQM आप उर्दू स्पीकिंग इलाकों के अलावा जो बलोच सिंधी इलाके थे वहाँ भी डोमिनेट करना चाहते थे। बलोचों का एक अच्छा इलाका था रेक्स, जिसको हम असल लश्करी विलेज जो गार्डन के पास ही है, वहाँ पर MQM ने जो बलोच अच्छे लड़के थे वहाँ पर उन्होंने आके कुछ उनको परेशान किया, और उस्मानाबाद के इलाके में उनको परेशान किया। तो इस पे जो है रहमान ने अपने ग्रुप के साथ उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की, तो वहाँ पे वो हीरो बन गया। अच्छा, जो बलोच आबादियाँ करीब थी वो उनके लिए एक मसीहा बन गया। दैट्स इज़ अ शुरुआत ऑफ द रहमान, कि वहाँ से फिर औरंगी टाउन में झगड़ा होता है बलोच महाजर का, रहमान वहाँ पहुँचता है। फिर बलोच ये जो काला बोर्ड है यहाँ पर उर्दू स्पीकिंग और उनका झगड़ा होता है, रहमान वहाँ पहुँच के रेस्क्यू करता है। और फिर एक दिन अब्दुर्रहमान बलोच अपने उस्ताद हाजी लालू के बेटे यासिर अराफात के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। कहते हैं कि ये गिरफ्तारी हाजी लालू ने हुकूमत के प्रेशर में आकर अज खुद करवाई थी। यानी हाजी लालू ने 92 ऑपरेशन में MQM के खिलाफ कार्रवाइयों को बैलेंस करवाने के लिए हुकूमत का साथ दिया था, और अब्दुर्रहमान बलोच और अपने बेटे को पुलिस के आगे सरेंडर कर दिया था। रहमान को मैंने इंट्रोगेट किया था, मेरे पास रहा इंट्रोगेशन में 96 की बात है गालमन। हाँ, मेरा ख्याल 96 की बात है कि मैं CIA में था। तो ये गिरफ्तार तो हुआ था कलाकोट थाने, तो वहाँ से इंट्रोगेशन के लिए मेरे पास आया था। तो मैंने इसको देखा कि बहुत मजबूत असाब का आदमी है। उसने कोई इंट्रोगेशन में इतना बड़ा अच्छा कोई इंकशाफ नहीं किया था।
कुछ अरसे बाद हाजी लालू अपने बेटे यासिर अराफात की जमानत करवा लेता है, लेकिन अब्दुर्रहमान को जेल में सड़ने के लिए अकेला छोड़ देता है। ये पहला मौका है जब अब्दुर्रहमान के दिल में अपने उस्ताद हाजी लालू और उसके बेटों के खिलाफ नफरत का बीज पड़ गया था। 1997 तक अब्दुर्रहमान बलोच अपना रास्ता खुद बनाने का हुनर सीख चुका था और फिर इसने इस हुनर का खूब इस्तेमाल किया। एक दिन अदालत पर पेशी से कबल अब्दुर्रहमान ड्रामाई अंदाज में फरार हो गया। कहते हैं इसने कोर्ट पुलिस और जेल पुलिस के एहलकारों को खरीद रखा था। जिस दौरान अब्दुर्रहमान जेल में था, इस दौरान इकबाल उर्फ बाबू डकैत पर फालिज का हमला हुआ और पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट की पेशी से फरार होकर अब्दुर्रहमान बलोच सीधा बलोचिस्तान गया, जहां इसने अपने ग्रुप को असर-ए-नौ मुनज़्ज़म करना शुरू किया और साथ ही हाजी लालू और उसके बेटों पर हमले की मंसूबाबंदी भी शुरू कर दी। धंधे की रकाबत और बदले की आग अब्दुर्रहमान बलोच को सुकून से बैठने नहीं दे रही थी, लेकिन अभी एक हिसाब चुकता करना बाकी था। जिस दौरान अब्दुर्रहमान जेल में था, उस दौरान पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन के सरगर्म कारकुन सलीम उर्फ सल्लू ने लियारी के गबोल पार्क में इसके भाई अब्दुल रहीम को फायरिंग करके जख्मी कर दिया था। रहमान ने फरार होने के बाद 1998 में सबसे पहले एक तबलीगी इज्तिमा के दौरान कराची के शाह लतीफ टाउन में फायरिंग करके अपने भाई को जख्मी करने का बदला लिया और सलीम उर्फ सल्लू पर गोलियां बरसा दी। ये वो दौर था जब हाजी लालू और उसके बेटों ने धंधे में पंजे गाड़ रखे थे। आपको एक हैरान कुन बात बताता हूँ, ये तमाम झगड़ा जिसको हम गैंग वॉर के नाम से जानते हैं और जिसमें सैकड़ों लोगों की जिंदगियां बर्बाद हुई या फिर लोग जानों से गए, वो सिर्फ 250 रुपए से शुरू हुआ। ये एक लागर नाम का बंदा था जो रहमान का रिश्तेदार अपने कहता था, और वो रहमान के बिहाफ पे इनायत के पास तरियाक लेने गया तो उसने उसको मना किया या उसने कहा कि मुझे फ्री में दो या मुझे कम करके दो। उसने उस पर रेजिस्ट किया और उस पर तू मैं हुआ, क्योंकि वो ख़ुद भी इस तरह। तो इसमें जो है ना, उसको जो है फिर रहमान तक बात पहुंची तो उसको मेरा ख्याल में मारा गया। उसके बाद जब साले को मारा गया, ज़ाहिर है वो इन्वॉल्व होगा। तो इस तरह से थोड़ी सी रंजिशें उन फैमिली के दरमियान हुई। रहमान भी नहीं माना तो यहाँ से वो झगड़ा शुरू हुआ। बेसिकली 250 रुपये का झगड़ा था। ये कोई प्रॉपर्टी का या कोई डैन का या कोई ग्रुप का झगड़ा उस वक्त नहीं था। सन 2000 में अब्दुर्रहमान बलोच ने अरशद पप्पू के हमजुल्फ इनायत को कत्ल कर दिया, लेकिन इसके साथी रुस्तम को जख्मी हालत में छोड़ दिया, जो भागकर अरशद पप्पू के पास जा पहुंचा। अब तक अरशद पप्पू बाकायदा गैंगस्टर नहीं बना था। वो अपने बाप हाजी लालू के धंधे की निगरानी करता था, भत्ते की रकम का हिसाब किताब रखता था या फिर मनशियात की डील्स करता था। इनायत के कत्ल के बाद अरशद पप्पू बाकायदा जंगजू बनकर सामने आया और इसने चुन चुन कर अब्दुर्रहमान बलोच के रिश्तेदारों और साथियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। दूसरी जानिब अब्दुर्रहमान बलोच, जिसे पुलिस अब रहमान डकैत के नाम से पुकार रही थी, लियारी में अपना असर और रसूख बढ़ा रहा था। इसने लियारी से मुत्तसिल जूड़िया बाजार, सराफा बाजार और टिम्बर मार्केट तक भत्ते की पर्चियां भेजना शुरू कर दी थीं और साथ ही लियारी में बस अड्डों की इंतहाई अहम ट्रेड यूनियन, जिसे सिंध बलोचिस्तान ट्रांसपोर्ट यूनियन कहा जाता था, उसके सदर महरान बलोच को हटाकर अपना नुमाइंदा फैज़ मोहम्मद उर्फ फैज़ू मामा मुकर्रर कर दिया था। महरान बलोच हाजी लालू का नुमाइंदा था। वो ट्रांसपोर्ट कंपनी से भत्ते की रकम हाजी लालू को दिया करता था और मामा फैजू के आने के बाद भत्ते की ये रकम अब अब्दुर्रहमान बलोच उर्फ रहमान डकैत की जेब में जा रही थी। अरशद पप्पू, जो अपने हमजुल्फ इनायत के कत्ल के बाद पहले ही गुस्से से तिलमिला रहा था, अब महरान बलोच के हटाए जाने पर मजीद मुश्तइल हो गया। इसने अपने साथी रुस्तम के साथ मिलकर मामा फैजू को अगवा कर लिया। ये वही रुस्तम है जो इनायत के कत्ल के दौरान जख्मी होकर अरशद पप्पू के पास पहुंचा था। मामा फैजू की तशद्दुद-ज़दा गोलियां लगी लाश मच्छर कॉलोनी के रेलवे ट्रैक से मिली और जिस गाड़ी में इसे अगवा करके तशद्दुद किया गया वो अरशद पप्पू के इलाके जहानाबाद से मिली। फैज़ मोहम्मद उर्फ मामा फैजू रहमान डकैत के जानशीन उज़ैर बलोच का वालिद था। ये परवेज़ मुशर्रफ का दौरे हुकूमत था। हाजी लालू गिरफ्तार होकर जेल जा चुका था। आसिफ अली जरदारी भी इन दिनों जेल में थे। मैंने आपसे शुरू में कहा कि अगर अब्दुर्रहमान बलोच यानी अब रहमान डकैत
جس کو کہا جا رہا ہے اگر اس وقت آصف علی زرداری کے جیل سے بھیجے گئے کچھ پیغامات کو سمجھ لیتا تو شاید معاملات مختلف ہو سکتے تھے۔ حاجی لالو کی جیل میں موجودگی اور آصف علی زرداری کی بھی انہی دنوں جیل میں موجودگی، کوئی بڑا فیصلہ یہ دونوں مل کر گینگ وار کے حوالے سے کر چکے تھے۔ زرداری صاحب جب جیل میں تھے تو وہاں پر میری ایک میٹنگ ہوئی، دو میٹنگیں ہوئی، دو میٹنگیں ضیاء الدین ہاسپٹل میں ہوئیں۔ ان کا بڑا کنسرن تھا اپنے ووٹ بینک کے حوالے سے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ یار دیکھو تقریباً حاجی لالو سے تو ہماری بات ہو گئی ہے، وہ ہم تیار ہیں، لیکن اس وقت جو تھا ایک مسئلہ تھا عزیر کے والد کا مرڈر کا۔ وہ بلوچی روایت میں یہ تھا کہ اس کو ریزولو کیا جائے۔ اس کے لیے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ دونوں جو گروپس ہیں کم از کم ان کے درمیان صلح کروائی جائے، اگر صلح نہیں کرائیں گے تو یہ دونوں کو نقصان بھی ہوگا، لیاری کو بھی نقصان ہوگا اور خاص کر پاکستان پیپلز پارٹی کو نقصان ہوگا۔ لیکن چند ایسی وجوہات تھیں جس پہ ہم کمیٹی کام نہیں کر سکے۔ انور بھائی جان کا مرڈر ہو گیا تو یہ بھی ایک بڑا المیہ ہوا کہ اچانک سے انور بھائی جان جو ہماری کمیٹی تھی وہ ایک دم سے جو ہے نا ہمیں شوق ہوا، اور یہ جو ہے یہ مسئلہ ہو گیا کہ اس میں ساری جو چیزیں ہم جس طرف جا رہے تھے ہم سب رک گئے۔ انور بھائی جان بلوچ اتحاد تحریک کے سربراہ تھے اور ارشد پپو کے رشتہ دار بھی۔ آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ جس روز یعنی 8 جنوری 2005 کو انور بھائی جان کو قتل کیا گیا، اس وقت لیاری میں پولیس اہلکار یا تو بیرکس میں تھے یا تھانوں میں۔ بیشتر مقامات خالی تھے اور پولیس پیٹرولنگ بند تھی، اور وجہ تھی انور بھائی جان کے قتل سے کچھ روز قبل ہونے والی ایک بڑی گرفتاری۔ ارشد پپو کے بھائی شیر محمد عرف شیرہ کو پولیس نے کچھ روز قبل ہی گرفتار کیا تھا، اور اس معاملے پر کئی افسران اور اہلکاروں کو انعامات اور ترقیاں دی جا رہی تھیں۔ پولیس کے ایک گروپ کا ماننا تھا کہ یہ انعامات اور ترقیاں غیر ضروری طور پر ان پولیس افسران اور اہلکاروں کو دی جا رہی ہیں جو شیر محمد عرف شیرہ کی گرفتاری میں کوئی کردار ادا نہیں کر سکے، اور پولیس کی اس غیر اعلانیہ ہڑتال کا نتیجہ انور بھائی جان کے قتل کی صورت میں سامنے آیا۔ پیپلز پارٹی اپنے گڑھ لیاری میں رحمان ڈکیت کے سامنے بے بس ہو چکی تھی۔ 2005 کے بلدیاتی الیکشنز میں رحمان ڈکیت نے پہلی سیاسی چال چلی اور ملک فیاض کو اپنا نمائندہ بنا کر پیش کیا، جس نے لیاری کے ناظم کے طور پر سیٹ جیت لی۔ لیکن ساتھ ہی ارشد پپو اور رحمان ڈکیت کی دشمنی نے لیاری والوں کو بدامنی کی بھیٹ چڑھا رکھا تھا۔ لیاری والے خوف کے سائے تلے جی رہے تھے۔ ایسا خوف ہے تو بچے باہر نکل نہیں سکتے، عورتیں نکل نہیں سکتی ہیں۔ یہ جنگ بند کرو، یہ لڑائی بند کرو، بے گناہ بچے مر رہا ہے۔ اور اس مارا ماری کو رکوانے کے لیے مشہور زمانہ چودھری اسلم اور عرفان بہادر کی لیاری ٹاسک فورس بنا دی گئی۔ اس ٹاسک فورس نے سب سے پہلا چھاپا ارشد پپو کے گھر پہ مارا۔ اس لیاری ٹاسک فورس میں چودھری صاحب تھے، میں تھا، اور ٹی پی او لیاری کا چارج دیا گیا تھا عمر شاہد صاحب کو۔ بہت سارے ان کے انٹرسٹ تھے، کامن انٹرسٹ تھے، جس کے اوپر ان کا جھگڑا چل رہا تھا، اور علاقے کی کمان سنبھالنا بھی تھا کہ لیاری کی کمان جو ہے وہ ارشد پپو جہان آباد سے بیٹھ کے کہتا تھا کہ میں سنبھالوں گا، اور ادھر سے رحمان ڈکیت اپنے لڑکوں کے ساتھ وہ دونوں گینگ اپ ہوئے تھے اور اس طرح وہ قابو کرنا چاہتے تھے۔ جہان آباد گئے تو پہلے ہی دن جہان آباد میں وہاں پولیس مقابلہ ہو گیا، اور پولیس مقابلے میں جیسی پولیس نے انٹری دی تو آگے سے ریٹیلیٹ کیا گیا۔ اس کے نتیجے میں 2 جوان یا 3 جوان ہمارے بھی زخمی ہوئے، اور اس طرف سے بھی جو ہے وہ لوگ زخمی بھی ہوئے، اور اس میں جو ایک یا 2 لوگ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس میں ہلاک بھی ہوئے تھے، اور پھر یہ ارشد پپو گینگ کے خلاف، اور ارشد پپو وہاں موجود تھا، اور پھر اس کے بعد وہاں سے اسکیپ کر گیا۔ چودھری رحمان ڈکیت کو بھی ڈھونڈتا پھر رہا تھا، یہاں تک کہ اس نے رحمان ڈکیت کے ہب میں واقع وائٹ ہاؤس تک پر حلہ بول دیا، اور وہاں ہونے والے نقصانات اور ہزیمت کو برداشت بھی کرنا اب چودھری کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ لیاری ٹاسک فورس کی ہب میں ہونے والی اس کارروائی کی ناکامی کا نتیجہ عبد الرحیم کی موت کی شکل میں سامنے آیا۔ عبد الرحیم عبد الرحمان بلوچ یعنی رحمان ڈکیت کا بھائی تھا، اور ہب کی کارروائی کے کچھ دنوں کے بعد وہ چودھری اسلم کے ہتھے چڑھ گیا تھا اور ایک مبینہ مقابلے میں مارا گیا تھا۔ جو ہم کو گولی مارے گا تو وہ ہمارا باپ بھی ہوگا تو ہم اسے گولی ماریں گے۔
اور پھر پیچھا کرتے کرتے چودھری اسلم پہنچا کوئٹہ، جہاں 2006 میں بالآخر اس نے رحمان ڈکیت کو دھر لیا۔ کوئٹہ کے سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہونے والے اس آپریشن سے فرار کی کوشش کے دوران عبد الرحمان بلوچ اپنی ٹانگ توڑوا بیٹھا تھا۔ چودھری اسلم اور اس کے ساتھی رحمان ڈکیت کو لے کر کراچی آ گئے، جہاں نامعلوم مقام پر اس سے تفتیش شروع کر دی گئی۔ ابھی رحمان ڈکیت چودھری اسلم کی تحویل میں ہی تھا کہ چودھری اسلم معشوق بروہی کیس میں گرفتار ہو گئے۔ معشوق بروہی کیس کیا تھا، اس حوالے سے ہم ایک علیحدہ ویلاگ کریں گے۔ آج بات ہو رہی ہے صرف رحمان ڈکیت کی۔ چودھری اسلم کی گرفتاری کے بعد رحمان ڈکیت کو پولیس افسر بہاؤالدین بابر کے حوالے کیا گیا، جہاں اس کو نہ صرف اپنے گھر والوں سے موبائل فون پر بات کرنے کی اجازت تھی، بلکہ اس کو اسی کے گھر کا پکا ہوا کھانا بھی پہنچایا جاتا تھا۔ ایک روز وہ پولیس اہلکار جو رحمان ڈکیت کے گھر سے آنے والا کھانا لینے جاتے تھے، ان کا پیچھا کیا گیا۔ رحمان ڈکیت کے ساتھیوں نے پیچھا کر کے وہ مقام دیکھ لیا جہاں رحمان ڈکیت کو حراست میں رکھا گیا تھا، اور اگست 2006 میں بالآخر رحمان ڈکیت کو اس کے ساتھیوں نے پولیس حراست سے چھڑوا لیا۔ یہ رحمان ڈکیت کا پولیس کی حراست سے دوسری مرتبہ فرار تھا۔ رحمان ڈکیت فرار ہونے کے بعد لیاری پہنچا، جہاں اس کے پہنچنے کی خوشی میں 3 روز تک غریبوں کو مفت کھانا تقسیم کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ نواب اکبر خان بگٹی کی ایک فوجی آپریشن میں مارے جانے کی خبر سامنے آ گئی۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی لیاری سمیت کراچی کی مختلف بلوچ آبادیوں میں پرتشدد مظاہرے اور ہڑتالیں شروع ہو گئیں۔ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ ہڑتالیں اور پرتشدد مظاہرے رحمان ڈکیت کے ایما پر کیے جا رہے تھے، اور یہاں سے رحمان ڈکیت اسٹیبلشمنٹ کی نظروں میں بھی کھٹکنا شروع ہو گیا۔ رحمان ڈکیت کے لیاری پہنچنے کے 2 ماہ بعد ارشد پپو کو گرفتار کر لیا گیا، اور اس کی جگہ سنبھالی علی محمد محلہ کے کمانڈر غفار سکری نے۔ 2007 میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی وطن واپسی کو کون بھول سکتا ہے؟ وہ پرویز مشرف کی تمام تر مخالفت اور اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر 18 اکتوبر کو کراچی ایئرپورٹ لینڈ کر رہی تھیں۔ ان کی جان کو خطرہ تھا، اور اس خطرے کے تناظر میں رحمان بلوچ نے لیاری والوں کے ساتھ مل کر جانثاران بے نظیر کے نام سے بے نظیر بھٹو کے لیے ایک حفاظتی دستہ تیار کیا۔ ہم جان نثار بے نظیر تھے، ہمارے پاس کوئی ویپن نہیں ہوتا تھا، ہمارے پاس کوئی کلاشن کوپ نہیں ہوتا تھا، ہم صرف اور صرف محترمہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ کہیں محترمہ ایئرپورٹ سے آیا، ہم لینے گئے، بلاول ہاؤس سے نکلا ہے ایئرپورٹ جا رہے ہیں، ہم پہنچانے گئے، لیاری میں آئے ہم اس کے ساتھ آتے تھے۔ ہمارا کام تھا محترمہ کے ساتھ چلنا۔ جتنے بھی لڑکے محترمہ کے ساتھ تھے اس سب کا تعلق رحمان بھائی سے اچھا تھا۔ اس روز جب کارساز پر دھماکہ ہوا تو میں میڈیا کے ٹرک پر موجود تھا۔ بے نظیر کے جانثاروں نے ٹرک کو گھیرے میں لے رکھا تھا، اور پھر دھماکے کے بعد اسی حفاظتی دستے یعنی جانثاران بے نظیر نے بلاول ہاؤس تک بے نظیر کو پہنچانے میں بھرپور کردار ادا کیا۔ اخبارات میں ایک تصویر چھپی جسے آج بھی رحمان ڈکیت کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ اس تصویر میں رحمان ڈکیت جیسا کوئی شخص بے نظیر بھٹو کو دھماکے کے بعد ان کی گاڑی سے نکلنے میں مدد فراہم کر رہا ہے۔ یہ رحمان بلوچ یعنی رحمان ڈکیت ہے یا نہیں، اس بات کی کوئی شخص تصدیق نہیں کرتا۔ البتہ رحمان ڈکیت اور اس کے لوگوں نے بے نظیر کو دھماکے کے بعد بھرپور سیکیورٹی فراہم کی، اس کی تصدیق تو میں خود کر سکتا ہوں کہ 2-3 رشتہ دار مرے بھی ہیں۔ باسط بلوچ ہے، عارف بلوچ اس وقت آسٹریلیا میں اس کا قریبی بندہ تھا، اور ایک تھا اپنا باسط تھا جو ہلاک ہوا، شہید ہوا، لیاقت بلوچ تھا۔ یہ رحمان کے رشتہ دار تھے جو جان نثاران میں تھا۔ یہ مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس کو کون لے کے گیا۔ رحمان ڈکیت لیاری میں اب خان بھائی کہلانے لگا تھا۔ اس نے بہت تیزی کے ساتھ اپنے چچا اور والد کے طرز پر عوامی خدمت شروع کر رکھی تھی۔ 2008 میں اس نے امن کمیٹی قائم کی، اپنے مخالفین یعنی ارشد پپو کے جانشین غفار ذکری سے امن معاہدہ کیا۔ 2008 کے انتخابات میں پہلے سے طاقت میں موجود ایم کیو ایم کا نہ صرف سامنا کیا بلکہ پیپلز پارٹی کے ووٹرز کو بھی موبلائز کیا۔ یہاں تک ہوا کہ ایم کیو ایم کے حلقہ 248 سے امیدوار وسیع اللہ لاکھوں نے بھی رحمان ڈکیت کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ اس نے لوگوں کی اس قدر مدد شروع کر دی تھی کہ لیاری میں کئی لوگ آج بھی اسے یاد کرتے ہیں۔ کرمنل نے اپنا موڈس آپرینڈی چینج کیا،
वो पॉलिटिकल रूप में आए, उन्होंने इलाकों के अंदर मनशियात ख़त्म कर दिए, बंदूकें ख़त्म कर दी, लोगों के मसाइल हल शुरू हो गए। रहमान के पास जो भी आता था, कोई बच्ची की शादी के लिए, कोई बहन की शादी के लिए, किसी को काली जाने नहीं देता, कुछ ना कुछ उनका मदद कर लेता। अब रहमान ने हमारे इज़्ज़त खान स्कूल में एक पार्क बनाया, मुजाहिद पार्क को दोबारा बनाया, और एक हमारे इज़्ज़त खान स्कूल के पास एक साबिर स्पोर्ट का क्लब है, वो उसने बना के दिया। मुख्तलिफ चीज़ें हैं। लियारी जनरल हॉस्पिटल में ये मेडिसिन और इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता था उनको, कि ताकि यार यहाँ के लोग बाहर ना जाएं, ना मेडिसिन के हवाले से ना इंस्ट्रूमेंट के हवाले से, खासकर जो आरतों में जो सामान यूज़ होते हैं और दूसरे सर्जिकल में, सर्जरी में, इस तरह के वो करता था। रहमान डकैत शायद बच जाता अगर वो सिर्फ जराइम की दुनिया तक महदूद रहता। मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची में सियासत पर असरअंदाज होना कोई मामूली बात नहीं। ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी के लिए परेशानी का तो सबब थे वो, क्योंकि वो उनके डिसिप्लिन में नहीं थे, उनकी सारी चीज़ें उसमें नहीं थी। जो लीडरशिप थी पीपल्स पार्टी की, वो भी कंप्लेन करती थी कि ये हमारी बात सुनते नहीं है, ये कहते हैं नौकरियां डायरेक्ट हमें दो, हम कहते हैं वर्कर को दो या जिसको दो, वो कहते हैं कि भाई हमने आपको जितवाया तो ये हमारे ज़रिए डिस्ट्रीब्यूट हो। लियारी में वो बिला शिरकत गैर राज कर रहा था और उसकी इजाज़त के बगैर कोई काम लियारी में नहीं हो सकता था। लियारी वाले अब इसे सरदार अब्दुर्रहमान बलोच कहने लगे थे। सरदार अब्दुर्रहमान बलोच शायद भूल गया था कि लियारी से बाहर वो रहमान डकैत ही है। उसके सर की कीमत 50 लाख रुपए मुकर्रर है और सरकार को उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए किसी किस्म का नया मुकदमा या वजह बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो हुआ जो होना था। 2009 की बात है। मैं और चौधरी साहब, हम दोनों पोस्टेड थे इन्वेस्टिगेशन ईस्ट के अंदर, और वहाँ पे ये कोई करीबन शाम की बात है कि इत्तला मिली कि रहमान डकैत अपने साथियों के साथ वो क्रॉस करेगा स्टील टाउन लिंक रोड से होता हुआ, फिर उसने आगे कहीं जाना था कि अपनी मंजिल की तरफ। तो जैसे ही इत्तला मिली तो चौधरी साहब और मैंने, हमने टीम बनाई और 2 हिस्सों में हमने नाकाबंदी करी। जैसे ही वो नाका, पहला जो नाका था हमारा, जैसे ही वो उस नाके पे पहुंची गाड़ी तो उसको रुकने का इशारा किया। जैसे ही रुकने का इशारा किया तो गाड़ी के अंदर से स्ट्रेट बर्स्ट हमारी एक जो नाका लगाए वो मोबाइल खड़ी हुई थी उसके ऊपर लगा, और जैसे ही वो स्ट्रेट बर्स्ट लगा तो यहाँ से क्रॉस फायर शुरू हो गया। वो पहला नाका क्रॉस करके दूसरे नाके की तरफ बढ़ना शुरू हो गया। आगे दूसरा नाका था जिस पे हम सारे मौजूद थे। जैसे ही वो दूसरे नाके पे पहुंचा, अभी फायरिंग चली रही थी पीछे से, जो पार्टी थी हमारी जिसने नाकाबंदी कर रखी थी, जिसके ऊपर फायर हुए थे, वो भी पीछे थी और आगे हम खड़े हुए थे। तो जैसे ही वो आगे वहाँ पहुंचा और पहुंचते ही वहाँ पे उन्होंने गाड़ी से उतर के फायरिंग शुरू कर दी। कुछ गाड़ी के अंदर बैठे हुए थे, फायरिंग शुरू करी। वो अपने साथियों के साथ था, मुसल्ला था। क्रॉस फायरिंग हुई। इस क्रॉस फायरिंग के नतीजे में चारों रहमान डकैत और रहमान डकैत के साथ 3 और लोग थे, वो मौके पे ही शदीद जख्मी हो गए। जब उसको वहाँ से शिफ्ट किया है अस्पताल, पहुँचते ही दौरान इलाज रास्ते में ही वो एक्सपायर हो गया। रहमान डकैत अपने कुछ साथियों के साथ हलाक हुआ है। कहते हैं अब्दुर्रहमान बलोच का जनाजा लियारी की तारीख के बड़े जनाजों में से एक था। अब्दुल सत्तार ईदी जैसी शख्सियत ने भी इसके जनाजे में शिरकत की थी। अब्दुर्रहमान बलोच की जिंदगी खत्म हो गई थी, लेकिन इसके साथी जिंदा थे और इसकी बनाई अमन कमेटी अभी बाकी थी और कराची में नई जंग शुरू होने जा रही थी। मेरा नाम उज़ैर बलोच है, मैं पीपल्स अमन कमेटी से ताल्लुकात है।